Okay, students, we are starting with question number 3. Before we start, equity shares can be bought back only if they are fully paid up. If shares are partly paid up, then make a call and receive a call. Buyback is possible at par, premium or discount. If it is at premium, that premium on buyback will be lost. It must be debited to securities premium account. Then face value of shares to be bought back is equal to proceeds of fresh issue plus free reserve. An amount utilized from free reserves, we transfer it to capital redemption reserve. Okay, these 5 rules were recorded for for buyback of equity shares. Okay, now we start with question number 3. Following is the balance sheet of Wonderful Limited as on 31st March 2016. And please note, rupees given is in lakhs. Balance sheet के top पे लिखा है rupees in lakhs. 1 lakh equity shares of 10 each fully paid. Securities premium 3.5 lakhs. General reserve, profit and loss account, 14% debenture creditors. Plant machinery, furniture, investment, stock, debtors and bank. On 1st April 2012, company decided to buy back 20% of its equity shares at a premium of 10 per share. For this purpose, company sold its entire investment for rupees 2.3 lakhs and issued 1500 12% preference shares of 100 each at par. Amount payable was rupees 60 on application and 40 on allotment. Issue was fully subscribed. Thereafter, company issued bonus shares of rupees 10 at the rate of 1 bonus share for every 5 equity shares held by equity shareholders. Show journal entries and balance sheet after above transactions were completed. Okay students, मैंने notes में last time बताया था, first lecture of this chapter, कि we have 2 types of question in this chapter students. एक तो जहाँ पे they will specify कि how many number of shares we have to buy back. And second case or a second type of question where they ask us to decide how many shares to be bought back. Now in this case, they have given us how many shares to be bought back just below the balance sheet. Company decided to buy back 20% of its equity capital. ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि 20% shares buy back करना है, हमें डिसाइड नहीं करना है. Okay, so this is the first type of the question. So now we start. If it is the first type of question where how many shares to be bought back are already stated, in that case we directly start with journal entries. Journal entries से start करते हैं. उसमें पहले देख लेने का स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, सो पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप है. बैलेंस शीट देखो, 1 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid. So shares are fully paid up, so we don't require make a call and receive a call. So what will happen students, we'll directly start with the equation students. Just hold on students. We'll directly start with the equation. We'll start with the equation. What is the equation students? It is face value of shares to be bought back. Face value of shares to be bought back is equal to proceeds of fresh issue plus free reserves. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू
प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स. ओके ठीक है. कितने शेयर्स बाय बैक करना है? 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स. बैलेंस शीट में जाओ स्टूडेंट्स, देखो वहां पे लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर्स. सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो विल गेट 20,000 शेयर्स. ओके. एंड फेस वैल्यू पर शेयर इज 10. लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फेस वैल्यू का है ना. So 1 lakh into 20% is 20,000 shares multiplied by 10. So company is buying back 2 lakh worth of equity shares. Value उसका rupees 2 lakh है. Number of shares is 20,000. Okay. क्या fresh issue किया है कंपनी ने इसके लिए? For this purpose, third line below the balance sheet, students. Issued 1,512% preference shares of 100 each at par. 1,512% preference shares. So fresh issue है स्टूडेंट्स. कितना शेयर्स इश्यू किया? 1,500. 12% preference shares of ₹100 each at par. So par पे इश्यू किया, 100 पे इश्यू किया. So 1,500 into 100 करेंगे तो fresh issue will be 1,50,000. So that means अगर मुझे बाय बैक 2 लाख का करना है, so I have two sources. From two places I can arrange the funds. या तो मैं फ्रेश इश्यू से करूं या फ्री रिजर्व या एनी कॉम्बिनेशन. सो हियर इन दिस केस फ्रेश इश्यू से मेरे पास आ गया 1,50,000. दैट मीन्स स्टिल 50,000 इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स. सो ये 50,000 कहां से आएगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम एनी फ्री रिजर्व. बैलेंस शीट में जाओ, देखो दो फ्री रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है स्टूडेंट्स. सो आई विल टेक फ्रॉम जनरल रिजर्व. अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमने नोट्स लिखा था ना एट दैट स्टेज, आई थिंक वी हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी सच नोट. अभी मैं लिखाता हूं स्टूडेंट्स. नाउ इन दिस चैप्टर ना स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर फॉर बायबैक ना, ये हमने कहां से लिया? फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व से लिया. इन दिस चैप्टर रिमेंबर, फ्री रिजर्व्स के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ले सकते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड for the purpose of buyback. मतलब क्या इसका? that is it can be recorded under free reserves इन अबाउ इक्वेशन. ये शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताया था, सो फार एज आई रिमेंबर स्टूडेंट्स. ठीक है. अच्छा, मैंने अभी जनरल रिजर्व से लिया है, बट स्टूडेंट्स इफ यू वांट यू कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो. सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो बैलेंस शीट में 3.5 लाख है. सो यू कैन इजिली टेक 50,000 फ्रॉम देयर. ओके स्टूडेंट्स, वी कैन इजिली टेक इट फ्रॉम देयर. नाउ स्टूडेंट्स, बट ये कब करना? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज सब करना इफ द क्वेश्चन सेज सो कि यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम एज फ्री रिजर्व, देन डू दिस. अदरवाइज माय एडवाइस इज, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है स्टूडेंट्स. कंपनीज एक्ट अलाउ करता है, यू कैन रिकॉर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. इफ द क्वेश्चन सेज कि यू यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम ओवर हियर, तो यूटिलाइज करना, आप अपनी मर्जी से मत करना स्टूडेंट्स. इफ इट इज सेड या इफ इट इज रिक्वायर्ड, देन ओनली यूटिलाइज हियर अंडर फ्री रिजर्व. नहीं तो फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. हमने ये सब एग्जांपल लिखे थे फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो माय एडवाइस टू यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इट इज अलाउड, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो, इफ एडजस्टमेंट सेज, क्वेश्चन सेज कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करो तभी लिखना, अदरवाइज डोंट यूटिलाइज इट. माय एडवाइस टू यू स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए नोट दिया है, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन. मैंने एक जनरल रूल आपको बता दिया है कि ठीक है, ध्यान रखना, कभी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा ना, इट कैन बी यूटिलाइज, इट इज अलाउड, बट इफ द एडजस्टमेंट सेज यूटिलाइज इट, देन ओनली यूटिलाइज इट, अदरवाइज नॉट. ठीक है. सो ध्यान रखना. फिर मैं आगे कंटिन्यू करके लिख देता हूं. इफ question says to utilize securities premium, then consider it as free reserve.
अगर आपको क्वेश्चन कहेगा तो यू कैन कंसिडर इट एज फ्री रिजर्व, अदरवाइज उसको फ्री रिजर्व मत समझना, उसको नॉन फ्री समझ के चलना। ओके डन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा नहीं है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करो, इसके लिए मैंने यूटिलाइज नहीं किया, मैंने जनरल रिजर्व से ले लिया 50,000 आई नीडेड। 2 लाख का बाय बैक करना है, 1,50,000 फ्रेश इश्यू से आ गया, तो बैलेंस 50,000 विल टेक इट फ्रॉम फ्री रिजर्व। विच फ्री रिजर्व? जनरल रिजर्व। आप चाहें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं, ओके, प्रैक्टिकली इट इज अलाउड, बट एग्जाम पर्पज के लिए स्टूडेंट्स माय एडवाइस, क्वेश्चन में कहां होगा यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम तो यूटिलाइज हियर, अदरवाइज यूज मत करना उसको, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। शेयर्स फुल्ली पेड अप था तो हमने मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल इग्नोर किया, वी स्टार्टेड विद द इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, शेयर्स पार्टली पेड अप था, शेयर्स वर पार्टली पेड अप, विच क्वेश्चन इट वाज, कहां गया, I think this was the question. Okay, so पहला shares partly paid up था, we made it fully paid up, then we had drawn the equation. Try to recollect question number 1 जो हमने किया था, shares partly paid up था तो पहले उसको fully paid up किया, बाद में इक्वेशन बनाया। बट टुडे ईयर ना, इन दिस केस स्टूडेंट्स, शेयर्स आर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप, तो फिर स्टूडेंट्स मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, सो वी स्टार्टेड विद द इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन हो गया, अब स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज। मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल तो पिक्चर से बाहर है। थर्ड एंट्री एज पर नोट्स इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में देखो, एडजस्टमेंट में देखो, second line below the balance sheet, for this purpose company sold its entire investment for rupees 2.3 lakh। बैलेंस शीट में जाओ, इन्वेस्टमेंट आपको 1.8 लाख दिया है स्टूडेंट्स, सो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा, जब भी एसेट बेचते हो तो आपको कैश मिलेगा, सो दैट इज द रीजन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बेच रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, कितने में बेच रहे हैं? बैंक शुड बी एट सेलिंग प्राइस 2.3 लाख, सो मैं सारे डिजिट्स लिख रहा हूं, 2,30,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एसेट है, कॉस्ट लिखना पड़ेगा 1,80,000, दैट मीन्स डिफरेंस इज गेन फॉर द कंपनी। 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट 2,30,000 में बेचा, ज्यादा में बेचा ना, तो 50,000 इज गेन फॉर द कंपनी, सो P&L क्रेडिट। नरेशन विल बी बीन इन्वेस्टमेंट sold at a profit, investment बेचा at a profit। this is entry number 3 as per our note students। ठीक है, make a call receive a call नहीं था, we started with sale of investment, वो दिया है तो we recorded। next entry is for fresh issue। fresh issue है क्या स्टूडेंट? देखो यहाँ पे था ना, fresh issue of preference shares, क्वेश्चन में दिया था, company decided to buy back 20% of its equity shares at a premium of 10 per share. For this purpose, company sold its entire investment done and issued 1,512% preference shares of 100 each at par. बट आगे क्या लिखा है? लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन था, अमाउंट पेएबल वाज ₹60 ऑन एप्लीकेशन एंड 40 ऑन अलॉटमेंट। जब भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है स्टूडेंट्स पैसे, लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसा एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मैंने लिख के बताया भी था आपको। अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है तो फॉर 1 इंस्टॉलमेंट वी रिकॉर्ड 2 जनरल एंट्रीज। अब यहाँ कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलने वाला है? अमाउंट पेएबल वाज 60 ऑन एप्लीकेशन एंड 40 ऑन अलॉटमेंट, तो 60 40 100। आपने फेस शेयर्स इश्यू किया है, शेयर्स इश्यू किया है स्टूडेंट्स आपने एट पार, शेयर्स आर इश्यूड एट पार। पार मतलब फेस वैल्यू पे, टोटल 100 पे इश्यू किया है। उसमें वो लोग बोल रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम आपको 60 देना है, अलॉटमेंट के टाइम आपको 40 देना है, सो टोटल 100 मिलेगा। लास्ट टाइम अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, बट टुडे देयर इज नो प्रीमियम, बायबैक प्रीमियम पे है, बट फ्रेश इश्यू 1,500, 12% preference shares of 100 each at par, clearly at par बोला है। So today there is no premium students. So 2 हमारे पास इंस्टॉलमेंट है तो हमको दोनों के लिए अलग अलग एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। For 1 इंस्टॉलमेंट विल रिकॉर्ड 2 एंट्रीज। पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पहले हम लोग कहते हैं रिसीव्ड, सो जनरल एंट्री विल बी एप्लीकेशन रिसीव्ड, मनी पैसा मिल रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं स्टूडेंट्स? दे हैव सेड 1,500 शेयर्स, बट एप्लीकेशन पे पूरा 100 नहीं आ रहा है, सिर्फ 60 रुपीज आ रहा है, सो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 60 इट कम्स टू 90,000। सो बैंक डेबिट 90 तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000। इसका नरेशन होगा बीन
application money received on कितना 1500 या 1500 shares at rupees 60. Okay, so this is the narration. So application money received, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं application money transferred. Transferred कैसा होगा स्टूडेंट्स? मैंने एप्लीकेशन लिखना चाहिए था, मैंने कैपिटल लिख दिया. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, इट शुड बी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. आई एम सॉरी. नाउ जनरल एंट्री विल बी 12% preference share application account debit to 12% preference share capital account credit. ऊपर 90 था, same 90,000 will copy students. Okay, narration will be been application money transferred. आपने या तो ऐसा पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, रिसीव आस्क्ड 12th स्टैंडर्ड में, ऐसा शायद पढ़ा हो, तो मैं यहाँ पे उसको ट्रांसफर कह रहा हूँ, रिसीव्ड एंड ट्रांसफर. ओके, दिस वाज फॉर रिसीव्ड बैंक टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बट आपको अलॉटमेंट में भी पैसा आया है, तो अभी अलॉटमेंट के हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. Again, 2 entries, students. Again, 2 entries. What will be the first entry for allotment? Entry number 1 will be, again, पहला हम लोग ट्रांसफर, यहाँ पे पहला ट्रांसफर होता है, तो विल राइट 12% preference share allotment account debit. 12% preference share allotment account debit to 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कितना स्टूडेंट्स? 1500 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 100 फेस वैल्यू है, 60 एप्लीकेशन पे आया, एंड दे हैव सेड 40 विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. सो 1500 into 40 अमाउंट विल बी 60,000. अमाउंट विल बी 60,000. नारेशन होगा बीन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर. देन रिसीव्ड की एंट्री आएगी. जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सेम 60,000. हियर देयर इज नो कॉल्स इन एरियस. 12th स्टैंडर्ड में आपने शायद सीखा होगा वो कॉल्स इन एरियस. हियर देयर इज नो सच कॉल्स इन एरियस. सो नरेशन विल बी बीन allotment money received on 1500 shares at rupees 40. Okay, so this is transferred, this is received. एप्लीकेशन में हमेशा पहले क्या होता है? पहले रिसीव्ड होता है, देन ट्रांसफर्ड. अलॉटमेंट में फर्स्ट ट्रांसफर एंड देन रिसीव्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स, मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल नहीं था, हमने इग्नोर किया. देयर वॉज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया. देन फ्रेश इश्यू का 4 एंट्री. नोट्स में हमने एक ही लिखा है स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा अलग अलग पूछा है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड दीज टाइप ऑफ एंट्री स्टूडेंट्स, वी कैन अवॉइड इट. सो एप्लीकेशन का 2 एंट्री एंड अलॉटमेंट का 2 एंट्री. एक्चुअली इट इज फॉर फ्रेश इश्यू. फ्रेश इश्यू भी हो गया. ओके, देन आफ्टर फ्रेश इश्यू वी सी कि भाई बायबैक कैसा किया, पार पे किया, प्रीमियम पे किया, कि डिस्काउंट पे किया. जस्ट बिलो द बैलेंस शीट, 1st April 2016, company decided to buy back 20% of its equity shares at a premium of 10 per share. Clearly उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स. So buy back, clearly they have said buy back is at प्रीमियम. एग्जाम में ऐसा लिखते नहीं है जर्नल में, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं. एंड हाउ मच प्रीमियम दे हैव सेड? 10 पर शेयर. एक शेयर पे आपको 10 रुपीज प्रीमियम देना होगा. सो मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स.
1 लाख से मत कर देना, बैलेंस शीट में 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, बट बायबैक कितना कर रहे हो आप, 20,000 शेयर्स कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, यू आर बाइंग बैक 20,000 शेयर्स, सो 10 पर शेयर इज द प्रीमियम, 20,000 शेयर्स हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, सो टोटल दैट मीन्स इट विल बी 2 लाख, इतना प्रीमियम आपको देना है, ये प्रीमियम पे करना है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अवेलेबल कितना है। अवेलेबल का मतलब बैलेंस शीट में देखो, शॉर्ट में BS, बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या, यस स्टूडेंट, देखो 3.5 लाख, 3,50,000 प्लस फ्रेश इश्यू FI, फ्रेश इश्यू में कोई प्रीमियम आया, देखो यहां कोई फ्रेश इश्यू में प्रीमियम नहीं था, फ्रेश इश्यू, ये चारों एंट्री फ्रेश इश्यू की है ना, देयर इज नो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड एट अ टाइम ऑफ फ्रेश इश्यू, सो आई एम सेइंग प्लस निल, सो दैट मीन्स अवेलेबल कितना है, 3,50,000 प्लस निल करेंगे तो अवेलेबल 3,50,000 है, अवेलेबल 3,50,000 है, आई हैव टू पे 2 लाख, तो इजीली पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था ना वो अवेलेबल कम था स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, पे 16,000 करना था, अवेलेबल 12 था, सो 12 वी पेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड 4,000 वी पेड फ्रॉम PNL अकाउंट फ्री रिजर्व से, क्योंकि अवेलेबल कम था, यहाँ अवेलेबल इज मोर देन रिक्वायर्ड इज 2 लाख, I have to pay 2 lakh, whereas available is 3,50,000. So good for us. पूरा का पूरा सारा का सारा अमाउंट हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से पे कर सकते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक इज अ लॉस फॉर द कंपनी, डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट्स अमाउंट हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, कितना पे करना है, 2 लाख, वापस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दैट्स एट 10 पर शेयर, सो 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर जो हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, कितने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, 20,000, सो 20,000 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट 2 लाख, अवेलेबल फाइंड किया, बैलेंस शीट में 3,50,000, फ्रेश इश्यू में हमें कोई प्रीमियम नहीं मिला, सो अवेलेबल इज 350, सो आउट ऑफ 350 यू कैन इजिली पे 2 लाख, अवेलेबल इज मच मोर देन व्हाट वी रिक्वायर, सो नरेशन विल बी बीन premium on buyback adjusted, so make a call receive a call नहीं था क्वेश्चन में, इग्नोर किया, we recorded fresh issue, we recorded sale of investment, then 4 entries for fresh issue, this is for premium on buyback. Next comes amount payable students, amount payable की journal entry में record कर रहा हूं, journal entry will be इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, सो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, सो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कहां से लेने का स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, लास्ट टाइम मैंने वो ऐसा एरो बना के बताया था, बट यहां पॉसिबल नहीं है अभी क्योंकि नेक्स्ट पेज पे वो एंट्री है, सो कहां से लेने हम लोग, यहां लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2 लाख, सो दैट 2 लाख आई रिकॉर्डेड एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम कहां से आएगा, जस्ट द प्रीवियस जर्नल एंट्री, ये प्रीमियम सेम प्रीमियम यहां पे आएगा, इट्स अ कोइंसिडेंस कि आपका प्रीमियम और कैपिटल अमाउंट सेम है, दोनों में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ सोचना नहीं कि ये भी 2 लाख ये भी 2 लाख, दिस कम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ये पहला वाला 2 लाख एंड सेकेंड वाला फ्रॉम द प्रीवियस जर्नल एंट्री, सो 2 and 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स टोटल विल बी 4 लाख, नरेशन विल बी बीन अमाउंट payable on buyback. Okay, so this was amount payable. इसके बाद होता है amount paid. आफ्टर अमाउंट पेबल नेक्स्ट एंट्री वी हैव फॉर इज अमाउंट पेड, सो जनरल एंट्री उसका रिकॉर्ड करेंगे, जनरल एंट्री विल बी किसको पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना पे करेंगे स्टूडेंट, जो प्रीवियस एंट्री में हमने 4 लाख लिखा है ना वो सेम यहां पे कॉपी करना है, this 4 lakh I have copied here
narration will be been amount paid on buyback. Okay, next इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट 10 दिस इज डन. मेकअप कॉल रिसीवर कॉल नहीं था, वी इग्नोर. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया, फ्रेश इश्यू का 4 एंट्री रिकॉर्ड किया, प्रीमियम ऑन बाय बैक, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड. नेक्स्ट कम्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. स्टूडेंट्स उसके लिए वापस इक्वेशन में जाना है, फ्री रिजर्व देखने का. अंडर दैट कितना यूज किया? 50,000. कहां से यूज किया? जनरल रिजर्व से. सो डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट. सो जनरल एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. वी रेफर द इक्वेशन. अंडर इक्वेशन ना देखो फ्री रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व में देखो कितना यूज किया है? 50,000. कहां से यूज किया है? जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. कितना यूज किया था हमने? 50,000. सो दैट्स व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग हियर. 50,000 यहां से यूज किया. 50,000 जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. बीन फ्री रिजर्व. जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है. फ्री रिजर्व यूटिलाइज्ड, हमने यूज किया उसको. एंड ट्रांसफर्ड, कहां ट्रांसफर कर दिया? CRR में. एंड ट्रांसफर्ड. सो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल नहीं था. वी स्टार्टेड विद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू का 4 एंट्रीज, प्रीमियम ऑन बाय बैक, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड, ट्रांसफर टू CRR. नेक्स्ट 2 और एंट्रीज हमने नोट्स में लिखी थी स्टूडेंट्स. इट वाज रिगार्डिंग बोनस शेयर्स. देखो ये क्वेश्चन में बोनस शेयर्स पूछा है उन्होंने. देयरआफ्टर द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 at the rate of 1 bonus share for every 5 shares held. हमने पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर किया है ना, वहां पे भी हमने बोनस का कैलकुलेशन तो किया था. सो स्टूडेंट्स लुक हियर, एक रेशियो दिया है हेल्ड एंड बोनस. कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी इश्यूड बोनस शेयर्स ऑफ thereafter company issued bonus shares of ₹10 at the rate of 1 bonus share for 5 shares held. जिसके पास 5 शेयर है ये कंपनी का, वो एक बोनस कंपनी उसको 1 शेयर गिफ्ट करेगी. बट प्लीज रिमेंबर, बोनस किसको मिलता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को. स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस कभी नहीं मिलता, ध्यान रखना. ओके, सो वेन एवर बोनस का एडजस्टमेंट दिया है, सो थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो पिक्चर में लाना भी नहीं, उसको मत कंसिडर करना. ओके, सो इफ आई हेल्ड स्टूडेंट्स हाउ मेनी शेयर्स? 5 shares of the company, I will get 1 bonus share. If I held 5 shares of the company, I will get 1 bonus share. Okay, अभी नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड फाइंड करना है. और इक्विटी शेयर्स मैंने कहा स्टूडेंट्स देखो बैलेंस शीट में कितना 1 लाख इक्विटी शेयर्स था. यस और नो? 1 लाख इक्विटी शेयर्स था. बट स्टूडेंट्स उसमें से तो हम लोग 20,000 शेयर्स तो बाय बैक कर लिया हमने. बाय बैक तो पहले ही हो गया ना, बोनस से पहले हो गया बाय बैक. सो वो 20,000 जो इक्विटी शेयर्स है उनको बोनस नहीं मिलेगा, बिकॉज वो शेयर्स तो हमने वापस ले लिए. बाय बैक का मतलब क्या होता है कि शेयर वापस लेना और शेयर होल्डर को रीपे कर देना. सो हमने उनसे तो शेयर्स वापस ले ली ना स्टूडेंट्स. सो दोज पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस. जिसका शेयर बाय बैक कर लिया उसको बोनस से बाहर कर दो. सो इफ समवन आस्क मी नंबर ऑफ शेयर्स, आई विल से 80,000. क्यों 80,000? ये 1 लाख आपको बैलेंस शीट में दिया है और 20,000 शेयर्स आप बाय बैक कर चुके हो. सो देन विल क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे. सो स्टूडेंट्स 80,000 इंटू 1/5. सो 80,000 डिवाइड बाई 5. नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 16,000. ये नंबर आया. फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? 10. सो 16,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,60,000 वैल्यू ऑफ बोनस है. तो पहला पॉइंट, बोनस is allotted या given only to equity shareholder. तो जब भी बोनस का एडजस्टमेंट आएगा ना तो इक्विटी शेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, चलो इक्विटी शेयर्स विच आर बॉट बैक, जो आपने बाय बैक कर लिया, विच आर बॉट बैक आर not considered या not eligible या not considered for bonus. ये 2 पॉइंट ध्यान रखना. ओके, सो बोनस हमेशा किसको देना? इक्विटी शेयर होल्डर. सो व्हेन वी से नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, तो यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स आना चाहिए. ओके, और स्टूडेंट ध्यान रखना, जो शेयर्स आपने बाय बैक किया उनको इग्नोर करो, उनको डिडक्ट कर लो.
So you got the 16,000 number of shares. Face value per share is 10 equity का. So total bonus कितना देना है? 1,60,000. बोनस का 2 एंट्री हमने नोट्स में लिखा है स्टूडेंट्स. फॉर बोनस वी हैव रिकॉर्डेड 2 जर्नल एंट्रीज. ये मैं जर्नल एक्सटेंड कर लेता हूं. 2 एंट्री हमने बोनस का लिखा है नोट्स में स्टूडेंट्स. पहला एंट्री होता है बोनस डिक्लेयर्ड का. नाउ उसका मैंने आपको ना एक सीक्वेंस बताया था. ऑलवेज फर्स्ट स्टार्ट विद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. जब हमने नोट्स लिखा था पहला एकदम फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. कहां गई बात? यहाँ पे, हियर इन दिस केस यहाँ था. फर्स्ट ऑलवेज यूटिलाइज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, देन कैपिटल रिजर्व, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन फ्री रिजर्व. ऐसा मैंने आपको बताया था. तो सेम वही मैं चीज डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट टाइम हम लोग ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चैप्टर में बोनस का. ओके, सो पहला क्या यूज करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व स्टूडेंट्स. बैलेंस शीट में जाओ. जब भी मैं रिजर्व की बात करूंगा ये चैप्टर में ना, पहले वो रिजर्व बैलेंस शीट में ढूंढना चाहिए. देखो CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बैलेंस शीट में है. रिजर्व मतलब लाइबिलिटी. तो देखो वहां तो कोई लाइबिलिटी में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो नहीं है स्टूडेंट्स. क्या एंट्री में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है? यस स्टूडेंट. देखो ये पेज पे कितना है? 50,000. नाउ प्लीज नोट, बोनस कितना देना है हमको? 1,60,000. तो पहला मैंने क्या कहा? किससे स्टार्ट करो? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. रिजर्व एक तरह का सेविंग्स होता है स्टूडेंट्स. फ्रेंड को अगर गिफ्ट देना है ना तो आप अपने सेविंग्स यूटिलाइज कर दो. फ्रेंड का बर्थडे है, किसी वजह से उसको गिफ्ट देना है. ओके, तो व्हाट यू डू, जब भी आपको पॉकेट मनी मिलता है ना तो आप एक टारगेट रखते हो, ट्राई टू सेव मनी. ओके, वो मनी से फिर देन पार्टी करना है, कुछ भी उसको गिफ्ट देना है. व्हाट दैट यू डू. ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूटिलाइजिंग योर रिजर्व. आप सेव कर रहे हो. ओके, फॉर व्हाट पर्पस? कि आगे किसी को गिफ्ट देना है. तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब भी बोनस देना हो ना स्टूडेंट्स, तो पहला कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ही यूज करना कंपलसरी. मैंने नोट्स में वहां पे लिखा है था. अगेन इफ यू वांट यू कैन टर्न द पेजेस एंड रेफर द नोट्स. वहां हमने लिखा था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर. बट इसमें बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स? 50,000. मुझे तो चाहिए 1,60,000. चलो 50 तो आया पहले चलो 50 तो लिख लेते हैं. स्टिल आई नीड 1,10,000. 160 में से 50 आ गया. सो स्टूडेंट स्टिल आई नीड व्हाट, हाउ मच? 1,10,000. फिर दूसरा रिजर्व कौन सा यूज करना चाहिए? कैपिटल रिजर्व. एक्चुअली मैं लिख देता हूं बट चलो नहीं लिखता स्टूडेंट्स बिकॉज वो है नहीं. सपोज इफ आई राइट कैपिटल रिजर्व तो मैं इसको बैलेंस शीट में ढूंढूंगा. कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में है क्या? नहीं है. तो जो चीज मेरी बुक्स में है ही नहीं मैं उसको डेबिट ही नहीं कर सकता. भूल जाओ उसको. नेक्स्ट कम सिक्योरिटीज प्रीमियम. अभी मैं डेबिट करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि वो मेरी बुक्स में है स्टूडेंट्स. ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. 3,50,000 था सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स. 3,50,000. और देखो यहाँ पे आपने डेबिट किया था कितना? 2 लाख. तो 2 लाख माइनस होगा. सो अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कितना है? 1,50,000 है. प्लीज अगेन आई रिपीट, 3,50,000 बैलेंस शीट में था. 2 लाख आप ऑलरेडी यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक. तो अभी बैलेंस कितना बचा? 350 माइनस 2 लाख, 1,50,000 प्रीमियम में बैलेंस है. आपको जरूरत कितने की है? बोनस 1,60,000 का देना है. 50,000 तो आपने अरेंज कर लिया. तो 160 माइनस 50 इज 110. आपको अभी और 110 की जरूरत है. अवेलेबल कितना है? 1,50,000. सो आई कैन इजिली यूटिलाइज 1,10,000 आउट ऑफ 150. आपके रेफरेंस के लिए यहां लिखता हूं स्टूडेंट्स, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए. बैलेंस शीट में 3,50,000 था माइनस 2 लाख विच यू पेड एज प्रीमियम ऑन बायबैक. या स्टूडेंट्स बेटर इसी के नीचे लिखता हूं. एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में इट वाज 3,50,000. फ्रेश इश्यू में तो कुछ नहीं था, प्लस फ्रेश इश्यू में प्रीमियम आया था नील. बट स्टूडेंट्स आपने माइनस किया प्रीमियम ऑन बायबैक. मैं शॉर्ट में लिखता हूं प्रीमियम ऑन बायबैक. कितना आपने पे कर दिया? 2 लाख. सो अभी बचा कितना? 3,50,000 प्लस 0 माइनस 2 लाख. सो ये स्टेज पे आने के बाद व्हेन यू अराइव हियर एट दिस स्टेज आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस 1,50,000 है. जरूरत आपको सिर्फ 110 की है. क्यों 110 की है? 160 का बोनस देना है. 50,000 ऑलरेडी आपके पास आ चुका है तो 110 की जरूरत है. सो आउट ऑफ 150 यू कैन इजीली टेक 110. ओके, दैट इज द वे वी डिसाइड. तो 110 भी आ गया हमारे पास. सो नाउ आई विल क्रेडिट. अब और कोई अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं. टू बोनस, टू इक्विटी share holders account. Amount is 1,60,000.
सो 160 चाहिए था, 50,000 मैंने सीआरआर से लिया, और 110 चाहिए तो कहां से लूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि वहां पे काफी बैलेंस है। अगर यहां भी कम होता तो देन मैं पीएनएल में जाता, जर्नलिज्म में जाता, वो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट कैपिटल डम्पशन रिजर्व, सेकेंड कैपिटल रिजर्व, वो था नहीं इसलिए इग्नोर किया, थर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम, फोर्थ ऑनवर्ड्स ना एनी फ्री रिजर्व यू कैन यूटिलाइज। सो इसका नरेशन होगा बीन बोनस डिक्लेयर्ड। ओके, देन डिक्लेयर्ड के बाद एक और एंट्री आती है बोनस शेयर्स अलॉटेड। मैं यहीं पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा हूं। जनरल एंट्री विल बी बोनस टू, ये एंट्रीज हमने नोट्स में लिखी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, वो सेम 1,60,000 यहां पे डेबिट कर लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,60,000. Narration will be being bonus shares allotted. So these are the two entries for bonus shares. ये आपका जनरल एंट्रीज था ये क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल नहीं था, सो वी स्टार्ट विद इक्वेशन। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू का 4 एंट्री रिकॉर्ड किया बिकॉज दे हैड आस्क्ड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ऐसा अलग अलग पूछा है, सो वी हैव टू डू दैट वे। प्रीमियम वन बाय बैक, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड, ट्रांसफर टू सीआरआर, और ये क्वेश्चन में बोनस भी पूछा है तो मैंने दोनों बोनस का एंट्री भी रिकॉर्ड कर दिया। नाउ वी स्टार्ट विद बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट के लिए हमको पहला शेड्यूल चाहिए स्टूडेंट्स। मैं शेड्यूल ये पेज पे बना रहा हूँ ऑन दिस साइड, ओके। सो शेड्यूल नंबर 1 हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बार कहा है, वंस अगेन 1 हमेशा शेयर कैपिटल ही बनाना। बीट एनी चैप्टर, आपको बैलेंस शीट पूछा है तो नंबर 1 शेयर कैपिटल। नेक्स्ट टाइम में हम लोग लिखते हैं ऑथराइज, नहीं दिया है तो जाने दो, ऑथराइज एक लाइन छोड़ के, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, बाद में देखेंगे। नंबर 2, रेफर द ओल्ड बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल, स्टूडेंट्स 3 रिजर्व दिया है। एक से ज्यादा जब भी आइटम होता है तो हम लोग वो शेड्यूल बनाते हैं। शेयर कैपिटल बनाया, रिजर्व्स भी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व दिया है, पीएनएल अकाउंट दिया है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर डिबेंचर एक ही है, क्रेडिटर एक ही है। प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, 2 फिक्स्ड एसेट है स्टूडेंट्स, सो आई एम ड्राइंग नंबर 3 ऑल्सो। फिक्स्ड एसेट भी बना रहा हूं मैं, नंबर 3 इज फिक्स्ड एसेट्स। फॉर इन्वेस्टमेंट स्टॉक, डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल तो है नहीं, सो जस्ट एक में हो जाएगा। सो ओनली 3 शेड्यूल्स आर रिक्वायर्ड। अब कैसे करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? वी स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो, क्वेश्चन में जो हमको दिया है। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो, जो हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है। ओके, वी स्टार्ट विद दैट। पहला क्या है लायबिलिटी में? देखो स्टूडेंट्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 लाख। सो इट्स अ लायबिलिटी। लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। डेबिट किया तो माइनस, क्रेडिट किया तो ऐड। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट। इक्विटी शेयर ढूंढो। इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है स्टूडेंट्स, नो इक्विटी शेयर कैपिटल। फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सिक्योरिटी यहां भी नहीं है, इधर है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2 लाख, डेबिट किया तो माइनस, 2 लाख माइनस किया। आगे भी ढूंढो, आगे भी ढूंढो। इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढ रहे हैं, शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली देखो ये लास्ट एंट्री में मिलेगा, ये लास्ट एंट्री। ओके, सो क्या किया हमने? क्रेडिट किया है, क्रेडिट मतलब ऐड। सो ये हो गया और ये भी हो गया। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर 9,60,000। 10 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1,60,000, 9,60,000 डिवाइड बाई 10 करो जो फेस वैल्यू है, तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स 96,000। सो हियर विल रिकॉर्ड इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप में 96,000 equity shares of ₹10, amount we got 9,60,000. Okay, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आफ्टर इक्विटी शेयर नेक्स्ट आइटम क्या है? बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है 3,50,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम ढूंढो फर्स्ट एंट्री से लेके लास्ट तक। स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री में तो नहीं है, इधर भी नहीं है, ओवर ईयर नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे है देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस, डेबिट किया तो माइनस, लाइबिलिटी डेबिट कर रहे हैं, हो गया ये। आगे भी ढूंढो सिक्योरिटीज प्रीमियम, आगे भी ढूंढो, यहाँ मिलेगा, अगेन माइनस
सो विल गेट 40,000 बैलेंस आया। तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, रिजर्व्स होता है, तो रिजर्व्स में जाएंगे और लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम वी गॉट आंसर एज 40,000 हो गया। अगेन गो टू द ओल्ड बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट जनरल रिजर्व है, अमाउंट 3,10,000। फर्स्ट एंट्री से लास्ट तक जनरल रिजर्व ढूंढो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ, यहां मिलेगा स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व। डेबिट किया, लाइबिलिटी डेबिटेड मीन्स माइनस, सो 2,60,000 इज द आंसर। सो जनरल रिजर्व मतलब अगेन रिजर्व्स इन सरप्लस, जनरल रिजर्व रिजर्व्स इन सरप्लस में आएगा, अमाउंट 2,60,000। ओके, नेक्स्ट अगेन गो टू द ओल्ड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,000 ढूंढो प्रॉफिट एंड लॉस राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट। फर्स्ट में है देखो P&L क्रेडिट किया, लाइबिलिटी क्रेडिटेड मींस ऐड 50,000, सो 160। आगे P&L ढूंढो स्टूडेंट्स, कहीं पे P&L है? नो, और कहीं P&L नहीं है, सो फाइनल आंसर इज 1,60,000। सो विल राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हर एंट्री ढूंढने का स्टूडेंट्स, आगे कहीं भी नहीं है, एक ही जगह है P&L, सो 1,60,000। ये भी हो गया। P&L के बाद बैलेंस शीट में क्या, 14% डिबेंचर। रेफर ऑल द एंट्री स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लास्ट तक, बोनस का एंट्री तक सब एंट्री ढूंढो, आपको कहीं 14% डिबेंचर नहीं मिलेगा। सो डिबेंचर्स विल गो टू वेयर, डायरेक्टली बैलेंस शीट, क्योंकि हमने उसका कोई शेड्यूल नहीं बनाया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक ही आइटम था ना इसके लिए। 14% डिबेंचर, हाउ मच इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, वही हम लोग कॉपी कर लेंगे। नथिंग टू ऐड और सबट्रैक्ट, क्योंकि वो जनरल एंट्री में है ही नहीं, तो सेम अमाउंट कॉपी किया। सेम वे क्रेडिटर स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट एंट्री से लेके आप लास्ट बोनस तक हर एंट्री रेफर करो, आपको कहीं क्रेडिटर्स नहीं मिलेगा। सो क्रेडिटर्स मींस ट्रेड पेएबल, सो ट्रेड पेएबल के सामने आई एम राइटिंग क्रेडिटर्स एंड आई विल कॉपी द सेम अमाउंट विच इज गिवन इन बैलेंस शीट विच इज 5 लाख। सेम टेक्निक हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में फॉलो किया बैलेंस शीट के लिए। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, सेम इज द केस विद प्लांट मशीनरी स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंट्री से लेके आप लास्ट एंट्री तक कहीं भी देख लो, कहीं प्लांट मशीनरी आपको नहीं मिलेगा। प्लांट मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट, प्लांट मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट, अमाउंट गिवन इज 13,50,000, 1350, 13,50,000। फर्नीचर, सेम इज द केस विद फर्नीचर स्टूडेंट्स, आप चाहे तो एक एक एंट्री चेक कर लो राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द लास्ट, आपको कहीं फर्नीचर नहीं मिलेगा। सो आई एम रिकॉर्डिंग फर्नीचर डायरेक्टली अंडर फिक्स्ड एसेट 2,40,000। इन्वेस्टमेंट, बी केयरफुल, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस। 1,80,000 है इन्वेस्टमेंट, ढूंढो इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट एंट्री में आपको मिल गया क्रेडिट, एसेट क्रेडिटेड मतलब माइनस, सो 180 में से 180 माइनस किया तो 0। एंड इफ यू रेफर फर्दर, आगे ढूंढोगे ना तो आगे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक ही जगह था, हमने माइनस किया, 0 हो गया, फॉरगेट इट, इट वोंट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। स्टॉक, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट, आप चाहे तो पेज टर्न करके आपने लिखा है तो सब चेक कर लो, कहीं भी आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स स्टॉक हियर इन्वेंट्रीज के सामने सेम अमाउंट विच इज गिवन इन बैलेंस शीट, इट इज गिवन एज 7,20,000। सेम इज द केस विद डेटर्स, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंट्री, एक एक एंट्री आप चाहे तो चेक कर लो स्टूडेंट्स, डेटर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर कहीं नहीं है तो दैट मीन्स इट वोंट चेंज, जो आंसर आपको बैलेंस शीट में, जो अमाउंट्स बैलेंस शीट में दिया है, दैट सेम अमाउंट शुड बी कॉपीड हियर। डेटर्स हो गया। बैंक, बैंक के लिए बी केयरफुल, बैंक कितना है 3 लाख, सो बैंक इज एन एसेट, डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस। फर्स्ट एंट्री डेबिटेड, ऐड 3 लाख प्लस 230, 530, अगेन डेबिटेड 90,000, ऐड, इट बिकम्स 620। और आगे चलते हैं, ईयर डेबिटेड 60,000, सो ऐड 6,80,000। देन कहां पे बैंक बैंक बैंक, ईयर स्टूडेंट्स देखो बैंक, क्रेडिट किया स्टूडेंट्स, क्रेडिट किया मतलब माइनस, सो माइनस 4 लाख, सो 2,80,000। आगे कहीं बैंक है, बोनस की एंट्री, बोथ द एंट्रीज बोनस का देखो, वहां पे बैंक नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं भी बैंक नहीं है। कहीं भी बैंक नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो फाइनल आंसर बैंक का है 2,80,000, दैट विल गो टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये इधर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,80,000 फाइनल आंसर। वंस अगेन स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट था, हमने माइनस किया। ओके, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, मैं एसेट की बात कर रहा हूं, प्लांट मशीनरी फर्नीचर कहीं भी एंट्री में नहीं है तो आई रिकॉर्डेड हियर। इन्वेस्टमेंट था, माइनस करके 0 हो गया तो इग्नोर किया।
स्टॉक किधर भी एंट्री में नहीं है, सो आई रिकॉर्डेड डायरेक्टली ईयर. डेटर्स एंट्री में नहीं है तो डायरेक्टली आई रिकॉर्डेड ईयर. बैंक है, प्लस माइनस किया, आई गॉट दिस आंसर 2,80,000. ओके, सो नाउ ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीटेड. वंस अगेन गो थ्रू द एंट्रीज. देखो कौन सा ट्रांजैक्शन बाकी है. ये तीनों कवर हो गया है, मैंने क्रॉस मार्क किया है. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 90, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट 90, तो 0. अभी देखो ये बाकी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90 क्रेडिट. आगे भी देखो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 क्रेडिट. दोनों क्रेडिट है ना स्टूडेंट्स, तो क्रेडिट क्रेडिट मतलब सेम साइन. 90 प्लस 60 1,50,000. प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 था. दिस वाज गिवन इन एडजस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स ये यहां पे आएगा 1,500. 12% preference shares of rupees 100 amount is 1,50,000. 1,50,000 को डिवाइड बाय 100 कर लो, विल गेट 1,500 नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, सो अभी क्या बाकी है, सब देखो कैंसिल हो गया. अभी नेक्स्ट पेज पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 60 डेबिट 60 क्रेडिट, भूल जाओ. अब आ जाओ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है. बाय बैक अकाउंट, ये प्रीमियम ऑन बाय बैक 2 लाख क्रेडिट 2 लाख डेबिट 0. इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 4 लाख डेबिट 4 लाख 0. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000 क्रेडिट ओवर ईयर 50,000 डेबिट 0. देन बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,60,000 क्रेडिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,60,000 डेबिट 0. तो सारे ट्रांजैक्शंस अब कवर हो चुके हैं. सो आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी क्लोज अवर schedules. So 9,60,000 plus 1,50,000. So it comes to 11,10,000. 40 plus 2,60,000 plus 1,60,000. That's 4,60,000. 13,50,000 plus 2,40,000. 1,590. 1,590. ओके, अभी ये अमाउंट्स हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे. शेयर कैपिटल नंबर 1 11,10,000. शेयर कैपिटल नंबर 1 11,10,000. रिजर्व्स नंबर 2 4,60,000. लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है, ये सब नहीं है इसमें. फिक्स्ड एसेट नंबर 3 15,90,000. नंबर 3 15,90,000. देयर इज नथिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं. दैट्स ऑल. अभी सबका टोटल 11,10,000 प्लस 4,60,000. इट कम्स टू 15,70,000. 7,50,000 प्लस 0 विल बी 7,50,000. 5 लाख प्लस 0 करेंगे तो 5 लाख ही रहेगा. प्लस 7,50,000 प्लस 5 लाख. टोटल इज 28,20,000. ये 15,90,000 प्लस प्लस सब 0 है तो 15,90,000 ही रहेगा. देन दिस 7,20,000 प्लस 230 प्लस 280 12,30,000 प्लस 15,90,000 28,20,000. बैलेंस शीट टाली हो गई. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ये इसका शेड्यूल था 3. दिस इज द बैलेंस शीट एंड दीज आर द एंट्रीज. यहां से हमने स्टार्ट किया था. मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल नहीं था तो हमने इक्वेशन बनाया. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेश इश्यू का 4 एंट्री है बिकॉज मनी हमको एप्लीकेशन लॉटमेंट ऐसा 2 इंस्टॉलमेंट में मिला. देन प्रीमियम ऑन बाय बैक था, पे अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड, ट्रांसफर टू सीआरआर एंड लास्ट 2 एंट्रीज वर फॉर बोनस स्टूडेंट्स. ओके, बीच बीच में मैंने नोट्स लिखा है आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स. ठीक है, वो एग्जाम में ऐसा लिखते नहीं है. एग्जाम में तो जर्नल बनाना है, एंट्रीज रिकॉर्ड करना है, नरेशन रिकॉर्ड करना है. कहीं कहीं मैंने कैलकुलेशन भी किया. ये सब आपके रेफरेंस के लिए कि हाउ टू गेट द आंसर्स. ये सब आपके रेफरेंस के लिए किया मैंने स्टूडेंट्स. ओके, ये वर्किंग नोट में जाना चाहिए. सब सेपरेट वर्किंग नोट बनाओ. मैं जर्नल में क्यों करता हूं, ताकि एंट्रीज के सामने ही रहे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. बट एग्जाम में यू मस्ट हैव अ सेपरेट वर्किंग नोट फॉर ऑल दीज कैलकुलेशन स्टूडेंट्स.
equity shares can be bought back only if they are fully paid up. Shares can be bought back either at par or premium and also at discount. Premium paid on buyback is loss for the company. Debit securities premium account. और discount पे buyback किया तो it's again credit capital reserve. Then that equation, face value of shares bought back is equal to proceeds of fresh issue plus free reserve. And the last condition was amount which we utilize out of free reserve should be transferred to capital redemption reserve. Now this is question number 4, students. Following is the balance sheet of New Wave Limited as on 31st March 2015. Share capital 2 lakh, equity shares of 10 each 20 lakh, securities premium 2 lakh 50, profit and loss 3 lakh, general reserve 3 lakh, creditors 3 lakh. Building, machinery, furniture, investment stock, debtors and bank balance. Company decided to buy back 20% of its equity capital out of profits. All legal formalities were duly completed. Company sold its investment for rupees 2,05,000 and issued 508% debentures of rupees 100 each, which amount was received in full. After buyback, company issued bonus share to equity shareholders in the ratio of 1 bonus share to 2 equity shares held using least possible amount out of profit and loss account. Pass entries and prepare balance sheet of the company after buyback. Okay. So now students, सबसे पहला देखो equity shares fully paid up है कि partly paid up है. Refer the balance sheet which is given to us. Equity shares fully paid up है कि partly paid up. In balance sheet they have said share capital 2 lakh, equity shares of 10 each fully paid. So अगर shares fully paid up है, we don't require make a call, receive a call. So students will directly start with equation. Equation क्या होता है? Face value of shares to be bought back is equal to proceeds of fresh issue plus free reserves. Okay? कितने shares buy back करना है? There are 2 type of questions in this chapter. एक जहाँ पे वो लोग खुद कहेंगे, they will specify how many shares to buy back. And second type is what? Where they will ask us to calculate the shares to be bought back. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कितना buy back करना है. We don't have to calculate. हाँ, उन्होंने बताया how many shares to buy back. Company decided to buy back 20% of its equity share capital. Balance sheet में 2 lakh equity shares हैं. So 2 lakh shares का 20%. Number of shares जो दिया है ना, उसका 20%. So it comes to 40,000. And face value per share is 10. So we get 4 lakh. 2 lakh is the number of shares given in balance sheet. 20% buyback करना है तो 40,000 is the number of shares. Multiply by rupees 10 we get 4 lakh. अब हमको देखना है स्टूडेंट्स फ्रेश इश्यू है क्या. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना. देखो अगेन जस्ट बिलो द बैलेंस शीट क्या लिखा था. कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल. आगे लिखा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स. So if you have taken print out of this question, ना ये out of profits को underline करो. What they mean to say, मतलब fresh issue अगर दिया भी होगा तो मत consider करो. Entire amount 4 lakh, you arrange it from free reserve. That is the meaning, students. Okay, clearly mention किया ना. Company decided to buy back so and so equity capital out of profits. So underline out of profit. आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब अगर फ्रेश इश्यू है भी क्वेश्चन में, सपोज दिया भी है एडजस्टमेंट में, डोंट रिकॉर्ड इट ओवर हियर. ओके, फुल अमाउंट यू टेक इट फ्रॉम फ्री रिजर्व. सो पूरा 4 लाख हम लोग फ्री रिजर्व से लाएंगे. अब बैलेंस शीट में जाते हैं, देखते हैं कौन सा फ्री रिजर्व दिया है. एक पीएनएल दिया है, एक जनरल रिजर्व दिया है. माई एडवाइस बेटर फर्स्ट ऑलवेज यूटिलाइज जनरल रिजर्व. तो हम लोग जनरल रिजर्व से 3 लाख ले लेते हैं जो बैलेंस शीट में दिया है, और बाकी जो बचेगा 1 लाख वो कहां से ले लेंगे? पीएनएल अकाउंट से ले लेंगे. सो आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब स्टूडेंट्स यहां मैं लिख देता हूं बाय बैक. आउट ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स इग्नोर फ्रेश इश्यू. FI इज फ्रेश इश्यू फॉर अबाउ इक्वेशन. मतलब अगर फ्रेश इश्यू दिया भी है ना तो अबाउ इक्वेशन में उसको लिखना नहीं, उसका एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. इफ फ्रेश इश्यू इज गिवन, नो डाउट वी विल रिकॉर्ड द एंट्री, बट वो अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे. दैट इज द मीनिंग. सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो अगेन शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो वी डायरेक्टली स्टार्टेड विद द इक्वेशन.
20% शेयर्स बाय बैक करना है, नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट में दिया उसका 20% कम्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 सो 4 लाख. Out of profit, buyback out of profit मतलब if fresh issue is given we will record the entry, no doubt about that, but please don't consider it here. इसके लिए मैंने nil कहा. So out of profit मतलब entire पूरा 4 लाख फ्री रिजर्व से आएगा. बैलेंस शीट में दो फ्री रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व है, एक P&L अकाउंट है स्टूडेंट्स. सो आई फर्स्ट यूटिलाइज जनरल रिजर्व, और बेटर हमेशा जनरल रिजर्व यूज पहले करने का, एंड देन गो टू बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, देन वी स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज. मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल, जैसे मैंने पहले कहा है, नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. देन कम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट्स देखते हैं कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है. कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹2,05,000. इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बैलेंस शीट में 2 लाख है, इट इज सोल्ड फॉर 2,05,000. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट. बैंक हमेशा सेलिंग प्राइस पे विच इज 2,05,000. इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट प्राइस विच इज 2 लाख. सो कंपनी के लिए गेन है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 5,000. सिंपल सा एंट्री है ये. बीन इन्वेस्टमेंट sold at a profit. Okay, so make a call, receive a call, shares are fully paid up, so we ignore that. Then we started with sale of investment. Then fresh issue, यहाँ तो मैंने nil कहा है स्टूडेंट्स. Why? Because they had said कि buyback should be out of free reserves. बट क्वेश्चन में जाओ अगेन, जहां पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था ना, उसी के आगे देखो क्या लिखा है, एंड इश्यूड 508% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. तो फ्रेश इश्यू था, बट हमने ऊपर इक्वेशन में नहीं लिखा. सिंपल रीजन, दे हैड सेड कि बायबैक शुड बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सो बैंक अकाउंट डेबिट. क्या इश्यू किया उन्होंने? 8% डिबेंचर्स टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट. कितना डिबेंचर्स? 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, सो आंसर विल बी 5 लाख. सो डिबेंचर्स के अगेंस्ट में भी 5 लाख. 500 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सा कैलकुलेशन है वो. 500 into 100, so narration will be being 500 debentures issued at par. कुछ बोला नहीं है तो ऑब्वियसली पार पे 100 पे इशू किया है, फेस वैल्यू भी 100 है उसका. सो being 500 debentures issued at par. Then after sale of investment, again as per the notes, next is देखना है बायबैक कैसे किया, पार पे किया, प्रीमियम पे किया, कि डिस्काउंट पे. कंपनी डिसाइडेड, बिलो द बैलेंस शीट दे हैड स्टेटेड, कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट्स. बस इतना कहा था कि आपको 20% शेयर्स बायबैक करना है. कैसे करना है? पार पे करना है, प्रीमियम पे करना है, डिस्काउंट पे करना है. नथिंग वाज स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स, सो विल से बायबैक इज एट पार. ये सब मैं आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है आपको. एग्जाम में तो जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड एंट्रीज एंड नरेशन स्टूडेंट्स. सो बायबैक इज एट पार. व्हाई? रीजन इज नथिंग स्पेसिफाइड. रीजन क्या है? नथिंग इज स्पेसिफाइड. इसके लिए मैंने कहा कि बायबैक इज एट पार. रीजन ये है, ठीक है. सो बायबैक इज एट पार, तो वो एंट्री भी हमारी पिक्चर से बाहर हो गई, प्रीमियम ऑन बायबैक. आफ्टर दैट कम्स अमाउंट पेएबल. सो अमाउंट पेएबल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. अमाउंट पेएबल की जनरल एंट्री होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. यहाँ ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, नॉट इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. स्टूडेंट्स सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. स्टूडेंट अमाउंट कहां से लेना चाहिए? ऑलवेज फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स. ये कैपिटल अकाउंट ना, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं हम लोग. ओके, कैपिटल अकाउंट. अभी पास्ट 2-3 क्वेश्चन जो हमने किए ना स्टूडेंट्स, वहां पे प्रीमियम ऑन बायबैक भी था, तो यहाँ तो प्रीमियम नहीं है. ओके, और वो प्रीमियम कहां से आता था? प्रीवियस एंट्री से. वो एंट्री तो है ही नहीं. सो जस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. 4 लाख, सिंपल सा है. Being amount payable on buyback.
being amount payable on buyback. So make a call, receive a call, पिक्चर से बाहर गया क्योंकि shares are fully paid up. Sale of investment, fresh issue, no premium or discount on buyback. Buyback is at par because nothing is specified in the question. Then this was amount payable. Amount payable के बाद हम लोग लिखते हैं amount paid. Journal entry for amount paid is equity share holders account debit to बैंक अकाउंट. अगेन ऊपर जो एंट्री में हमने अमाउंट रिकॉर्ड किया इक्विटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में, सेम अमाउंट भी कॉपी है. वापस से कोई कैलकुलेशन नहीं करना है. नरेशन बीन अमाउंट पेड ऑन बायबैक. ओके, दिस वाज अमाउंट पेड. नेक्स्ट इसके बाद होता है ट्रांसफर टू सीआरआर. उसके लिए भी रेफर द इक्वेशन. फ्री रिजर्व से हमने कुछ यूज किया, यस 4 लाख. कहां से? जनरल रिजर्व से और पीएनएल से. तो जो अकाउंट से हमने यूज किया है वो अकाउंट को डेबिट करना है स्टूडेंट्स हमको. सो विल स्टार्ट जनरल रिजर्व हमने पहले यूज किया है, तो विल स्टार्ट विद जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. और प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने यूज किया है वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. जनरल रिजर्व से 3 लाख यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 लाख यूज किया. ये दोनों कहां पे जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. टोटल विल बी 4 लाख. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. टोटल विल बी 4 लाख. जनरल रिजर्व पीएनएल टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ओके, ये देखो 3 लाख जनरल रिजर्व, 1 लाख पीएनएल. दैट्स व्हाट आई रिकॉर्डेड, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल. इसका नरेशन होगा बीन फ्री रिजर्व्स. दोनों भी फ्री रिजर्व है ना. फ्री रिजर्व यूटिलाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड. फ्री रिजर्व्स यूटिलाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड. दिस इज द एंट्री फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर. देन स्टूडेंट्स लास्ट 2 एंट्रीज हमने बोनस की लिखी थी नोट्स में. तो क्वेश्चन में देखने का बोनस का एडजस्टमेंट है तो विल रिकॉर्ड, अदरवाइज विल इग्नोर इट. देखते हैं क्वेश्चन में. देखो स्टूडेंट्स लास्ट में दिया है आफ्टर बायबैक कंपनी इशूड बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर टू 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड. सो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बोनस हेल्ड एंड बोनस. पहले वर्किंग करते हैं. व्हाट दे से, इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर टू 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड. जिसके पास 2 शेयर है ये कंपनी के, उसको जिसके पास 2 इक्विटी शेयर है ये कंपनी का, दैट पर्सन दैट शेयर होल्डर विल गेट 1 बोनस शेयर. लास्ट टाइम मैंने नोट लिखा था, अगेन आई विल नॉट रिकॉर्ड इट. बोनस इज गिवन ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर. स्टूडेंट्स ध्यान रखना हमेशा. ओके, एंड वन मोर पॉइंट आई रिकॉर्डेड, जो शेयर्स हमने बायबैक कर लिए, दोज इक्विटी शेयर्स विच वर बॉट बैक आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस. उनको बोनस नहीं मिलता है. बैलेंस शीट में देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमको ना, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स 2 लाख दिया है नंबर. हेल्ड का मतलब नंबर लिखना है. बट ये 2 लाख में से स्टूडेंट्स वे ऑलरेडी बॉट बैक 40,000 शेयर्स. सो दीज पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस. ये हमने बाय बैक कर लिया. तो राइट नाउ इट इज 1,60,000. तो स्टूडेंट्स हियर आई विल रिकॉर्ड 1,60,000. ओके, 1,60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ आंसर आएगा. 1,60,000 इंटू 1/2, 1/2 करेंगे तो वी गेट 80,000. सो 80,000 इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स. बोनस किसको मिलता है? इक्विटी शेयर्स को. ओके, सो फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज 10. सो 80,000 इंटू 10 करेंगे तो 8 लाख. So this is the value of bonus shares. This is the number of bonus shares. This is the value of bonus shares. अब एंट्री रिकॉर्ड करनी है. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था स्टूडेंट्स, उसका सीक्वेंस होता है. पहले हमेशा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करने का, देन कैपिटल रिजर्व, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन एनी फ्री रिजर्व कैन बी यूटिलाइज. तो स्टार्ट पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ही करते हैं. अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ना स्टूडेंट, जब भी हम रिजर्व की बात करते हैं इन दिस चैप्टर, फर्स्ट फाइंड दैट रिजर्व इन बैलेंस शीट. सो गो टू द बैलेंस शीट. वहां पे कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है क्या? लाइबिलिटीज साइड देखो, क्योंकि रिजर्व्स लाइबिलिटीज में होते हैं. देयर इज नो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इन बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे है क्या? देखो यहाँ है स्टूडेंट्स, प्रीवियस एंट्रीज में नहीं है. यहाँ पे है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख. बोनस देना है मुझे 8 लाख का. मेरे पास अभी अवेलेबल कितना है? 4 लाख. तो चलो पहले ये तो यूज कर लेता हूं मैं. फर्स्ट आई विल यूटिलाइज दिस. सो जर्नल एंट्री विल बी कैपिटल
रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच आई विल रिकॉर्ड 4 लाख जितना मेरे पास अवेलेबल है। आई हैव टू गिव 8 लाख, ठीक है, बोनस 8 लाख का देना है, तो स्टूडेंट्स मुझे डिफरेंट रिजर्व्स में जाना पड़ेगा। अगर पूरा 8 लाख यहाँ पे अवेलेबल है तो अच्छी बात है। 10 लाख अवेलेबल है सपोज सीआरआर में, जस्ट एन एग्जांपल 10 लाख है, तो कितना रिक्वायर है 8 लाख, तो आई विल राइट 8 लाख, तो 10 में से 8 मैं इजीली ले सकता हूं, बट अवेलेबल ही 4 है और आपको देना 8 लाख, तो हाउ कैन यू राइट 8 लाख ईयर, आपको 4 ही लिखना पड़ेगा। ऐसा समझो रिजर्व्स मतलब आपके पॉकेट्स हैं, डिफरेंट पॉकेट। पहला सीआरआर में जाओ, फिर कैपिटल रिजर्व में जाओ, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैंने अपने पहले पॉकेट में हाथ डाल के देखा, अरे मुझे 8 लाख देना है बट मेरे पॉकेट में तो 4 लाख है, तो ठीक है मैं 4 लाख ही वो पॉकेट से निकाल सकता हूँ ना, उतना ही अवेलेबल है, तो मेरा पहले पॉकेट से पहला रिजर्व से वो अमाउंट खत्म हो गया। देन नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व आता है, गो टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, वहां पे कोई कैपिटल रिजर्व है क्या? नो स्टूडेंट्स, नहीं है कैपिटल रिजर्व। देखो कोई एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया क्या? यू कैन चेक ऑल द एंट्रीज, कहीं भी कैपिटल रिजर्व नहीं आया स्टूडेंट्स, सो कैपिटल रिजर्व नहीं है तो उसको नहीं लिख सकते। थर्ड होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में दिया है क्या? यस स्टूडेंट्स, इट इज गिवन, देखो वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो आई विल राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसमें बैलेंस होना भी चाहिए, मुझे पता है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज यू मस्ट चेक इट। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कैसे चेक करना है, वंस अगेन बताता हूं मैं। देखो हमेशा मैंने लास्ट टाइम लिखा था, वंस अगेन मैं लिख देता हूं, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। व्हाट वी डू, बैलेंस शीट में जाने का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस देखने का, इट इज 2,50,000 प्लस आपने कोई फ्रेश इश्यू किया है? हाँ देखो डिबेंचर का फ्रेश इश्यू किया था, वहां पे कोई आपके पास प्रीमियम आया क्या? नहीं, दोज डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, तो फ्रेश इश्यू से कोई प्रीमियम मिला? नील। फिर माइनस प्रीमियम ऑन बाय बैक, मतलब प्रीमियम ऑन बाय बैक। अच्छा बट यहां देखो स्टूडेंट, बाय बैक वॉज एट पार, यानी आपने बाय बैक पे कोई प्रीमियम नहीं पे किया, तो -0। सो 2,50,000 प्लस नील माइनस 0, प्लस 0 माइनस 0, तो आपके पास अवेलेबल कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम में? 2,50,000। वंस अगेन आ जाओ, बोनस देना 8 लाख का, 4 लाख का मैं दे चुका, ओके। अभी और 4 लाख की जरूरत है, तो दूसरे पॉकेट में मैंने हाथ डाला, तो 2,50,000 प्लस 0 माइनस 0 अवेलेबल इज 2,50,000, सो आई कैन यूटिलाइज ओनली 2,50,000। देना अभी भी 4 लाख का बोनस है, बट पॉकेट में अवेलेबल इज 2,50,000 स्टूडेंट्स, सो मैं उतना ही यूज कर सकता हूँ ना। अगेन एग्जाम में ऐसा ये कोई वर्किंग नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, ओके। तो पहला हम सीआरआर में जाते हैं, कैपिटल एमिशन रिजर्व। सेकेंड वी गो टू कैपिटल रिजर्व, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और वो एंट्री में भी नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम देन यूज करते हैं, वो यूज कर लिया। अभी 4 एंड 2,50,000 मतलब 6,50,000 तो मेरे पास हो गया, बट देना था 8 लाख, तो अभी भी स्टूडेंट्स आपको 1,50,000 की जरूरत है। अब एनी फ्री रिजर्व आप यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व, पीएनएल, रेवेन्यू रिजर्व, बट अगेन बैलेंस शीट में देखने का वो है कि नहीं। गो टू बैलेंस शीट, देखो जनरल रिजर्व है, कितना है? 3 लाख, बट स्टूडेंट्स 3 लाख तो पूरा यहाँ यूज हो चुका ना फॉर बाय बैक, बाय बैक वॉज आउट ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व हम पूरा 3 लाख डेबिट कर चुके हैं। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, सो वहां पे क्रेडिट 3 लाख है, यहाँ पे आपने डेबिट 3 लाख कर दिया तो 0 हो गया ना, तो जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं है। और कोई फ्री रिजर्व है क्या? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट लॉस में बैलेंस है क्या? यस है स्टूडेंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना है, बैलेंस शीट में 3 लाख है, एंड लुक के स्टूडेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा ना, उस पे गेन हुआ 5,000 का, तो ये 5 हो गया, बट आपने 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक, जो आपने एंट्री में यहां डेबिट किया है, तो इसको माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस कितना है पीएनएल में? 2,05,000। जरूरत कितने की है स्टूडेंट्स? 1,50,000 की। अभी मैंने बताया था ना, ये टोटल इज 650, 8 लाख माइनस 650 इज 1,50,000। जरूरत 1,50,000 की है और पीएनएल में अवेलेबल 2,05,000 है, तो आई कैन टेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाउ। So profit and loss account debit. I will write 1,50,000. Again आप चाहें तो, हाँ, नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए। पीएनएल बैलेंस शीट में कितना दिया है मुझको? 3 लाख। मैं पेंसिल से लिख रहा हूं बिकॉज इट्स अ वर्किंग नोट, पेन से नहीं लिख रहा हूं, ओके। देन इसके बाद प्रॉफिट, अच्छा शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रॉफिट नहीं लिखता हूं, उसको लिखता हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचा था तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 3,05,000, ओके। एंड माइनस यूटिलाइज फॉर बाय बैक, आपने यहां यूटिलाइज किया 1 लाख,
तो आपको पीएनएल में कितना बचेगा, 3 लाख प्लस 5 माइनस 1 लाख, 2,05,000 बच रहा था और आपको जरूरत सिर्फ 1,50,000 की थी. सो 2,05,000 से आप 1,50,000 इजिली निकाल सकते हो ना. आपके जेब में 2,05,000 रुपया है, 2,05,000. सो फ्रॉम दैट 2,05,000 यू कैन इजिली स्पेंड, यू कैन इजिली पिक आउट 1,50,000. So this was the entry: capital redemption reserve, securities premium, profit and loss debit, to bonus, to equity share holders account. बोनस हमको देना था 8 लाख का. ये एंट्रीज आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में डेफिनेटली किया होगा स्टूडेंट्स. सो विल से बीन बोनस डिक्लेयर. डिक्लेयर्ड के बाद प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बोनस किया है. डिक्लेयर्ड के बाद क्या होता है, फिर बोनस शेयर्स अलॉट करना है या इश्यू करना है स्टूडेंट्स. ओके, तो जनरल एंट्री फॉर दैट इज लास्ट एंट्री है ये, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कितना लिखना है, 8 लाख. प्रीवियस एंट्री में देखो यहाँ पे हमने 8 लाख लिखा है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसी को डेबिट किया 8 लाख. नरेशन, सिंपल सा नरेशन लिखेंगे, बीन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. सो इंपॉर्टेंट ये एंट्री थी. ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 4 लाख था, 4 पूरा यूज किया. सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,50,000. कैसे 2,50,000, बैलेंस शीट का अमाउंट, फ्रेश इश्यू में कुछ नहीं आया, प्रीमियम बाईबैक में कुछ नहीं दिया, तो 250 पूरा अवेलेबल. पीएनएल में बैलेंस शीट में 3 लाख, सेल किया इन्वेस्टमेंट तो 5,000 आया और यूटिलाइज 1 लाख किया, तो अवेलेबल वॉज 2,05,000, बट एट दिस स्टेज यू रिक्वायर ओनली 150, तो 150 यूज किया, बोनस दे दिया. सो ये एक एंट्री इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स. एंड फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, ऑल्दो फ्रेश इश्यू वॉज गिवन डिबेंचर का, हमने नोट्स में फर्स्ट लेक्चर में लिखा था कि अगर बायबैक इक्विटी शेयर्स का है ना, यू कैन मेक अ फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड यू कैन रिकॉर्ड द अमाउंट ओवर ईयर. ऐसा हमने नोट्स में डिस्कस किया था. सो ऑल्दो ये फ्रेश इश्यू डिबेंचर्स का है, मैंने ये अमाउंट क्यों नहीं लिखा यहाँ पे स्टूडेंट्स, फॉर द सिंपल रीजन, क्वेश्चन ने कहा था कि बायबैक शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स. आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब आउट ऑफ फ्री रिजर्व. सो ऑल्दो फ्रेश इश्यू दिया था, मैंने उसका एंट्री रिकॉर्ड किया, बट आई डिडंट रिकॉर्डेड द अमाउंट इन दिस इक्वेशन. सो दीज 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और ये जनरल एंट्री इसका बोनस का, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद बैलेंस शीट. उन्होंने बैलेंस शीट भी पूछा है, तो अगेन वी ऑलवेज स्टार्ट विद लाइबिलिटीज. अच्छा पहले हम वो बना लेते हैं शेड्यूल्स. सो हियर आई एम ड्राइंग शेड्यूल स्टूडेंट्स. यहाँ पे शेड्यूल बना रहा हूं मैं. नंबर 1 हमेशा कौन सा बनाते हैं स्टूडेंट्स, ऑलवेज शेयर कैपिटल. हमेशा नंबर 1 शेयर कैपिटल ही बनाना व्हेनेवर दे आस्क बैलेंस शीट. अंडर दैट नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं ऑथराइज. लीव 1 लाइन नहीं दिया ऑथराइज, लीव अ लाइन इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप. अमाउंट कॉलम भी बनाना चाहिए, मैंने बनाया नहीं है. वी मस्ट ड्रॉ द अमाउंट. इट्स नॉट अ वर्किंग नोट, इट्स पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन स्टूडेंट, ध्यान रखना. अब ओल्ड बैलेंस शीट में जाओ, कितने रिजर्व्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, जनरल रिजर्व, तो एक से ज्यादा रिजर्व है ना. सो बेटर भी ड्रॉ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बना लेते हैं. नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिकॉज एक से ज्यादा रिजर्व दिया है हमको. क्रेडिटर्स तो ट्रेड पेबल में चला, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, 3 फिक्स्ड एसेट है स्टूडेंट. सो बेटर वी ड्रॉ फिक्स्ड एसेट भी बना लेते हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट, बिकॉज एक से ज्यादा फिक्स्ड एसेट दिया है. देन फॉर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, वो सब एक एक आइटम है, दैट विल गो डायरेक्टली टू बैलेंस शीट. सो 3 शेड्यूल में हमारा काम हो जाएगा स्टूडेंट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. पहला लाइबिलिटी क्या है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो टेक दैट अमाउंट ऑन कैलसी, 20 लाख होगा. अब इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट. हर एंट्री में ढूंढना है स्टूडेंट. फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, यहाँ है, थर्ड में है स्टूडेंट्स. 4 लाख डेबिट किया, लाइबिलिटी डेबिट मतलब माइनस. ओके, आगे भी ढूंढ लेते हैं. ये हो गया, ये डेबिट किया, हो गया. आगे भी ढूंढते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढ रहे हैं हम लोग. देखो यहाँ पे है लास्ट में 8 लाख क्रेडिट किया स्टूडेंट. सो ऐड कर लो, 4 लाख माइनस किया, 8 लाख ऐड किया. सो 24 लाख फाइनल आंसर. डिवाइड बाई 10, फेस वैल्यू 10, यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स. सो 2,40,000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स. इट विल गो टू इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप. इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप में लिखेंगे 2,40,000
equity shares of rupees 10, so amount will be 24 लाख. हमको कैलसी पे 24 लाख ही आया था. ओके, सो स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर हो गया. नेक्स्ट लाइबिलिटी देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है हमको. नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम में लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है. डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस. ढूंढो सिक्योरिटी प्रीमियम राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट. फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ओवर ईयर नहीं है, यहाँ पे है. यस स्टूडेंट्स देखो यहाँ डेबिट किया, लाइबिलिटी डेबिट, सो माइनस करो. जीरो, आगे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं. इफ इट इज जीरो वी मस्ट इग्नोर इट. ओके, इट वोंट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, भूल जाओ उसको. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख दिया है हमको. ढूंढो प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट एंट्री से. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट में है स्टूडेंट्स देखो क्रेडिट किया. क्रेडिट किया मतलब ऐड, लाइबिलिटी क्रेडिटेड, सो ऐड 5000. आगे भी ढूंढ लो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस. ये डेबिटेड, डेबिटेड मीन्स माइनस, सो 2,05,000. और पीएनएल देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी डेबिट किया, माइनस 1,50,000. सो फाइनल आंसर इज 55,000. और पीएनएल क्या होता है, रिजर्व्स होता है. सो विल गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, वहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. एंड फाइनल आंसर, नेट आंसर इज 55,000. पीएनएल के बाद नेक्स्ट रिजर्व उन्होंने क्या दिया है, जनरल रिजर्व 3 लाख. जनरल रिजर्व 3 लाख. ढूंढो जनरल रिजर्व राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यहाँ पे सुनो डेबिट किया, लाइब्रेरी डेबिटेड मींस माइनस, सो 3 लाख माइनस 3 लाख इज जीरो. आगे कहीं जनरल रिजर्व नहीं है, सो फाइनल आंसर जीरो. फॉरगेट इट, इट वोंट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स 3 लाख. स्टूडेंट्स एक ही एंट्री आप चेक कर सकते हो, कहीं क्रेडिटर्स का नाम आया ही नहीं, हमने उसको टच ही नहीं किया, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था. सो इट विल गो टू ट्रेड पेएबल्स. हियर आपके रेफरेंस के लिए क्रेडिटर्स, एंड डायरेक्टली इट विल गो टू बैलेंस शीट. हाउ मच इज द अमाउंट गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, 3 लाख. वही मैंने कॉपी कर लिया, 3 लाख. ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद अब आ जाओ एसेट साइड, बिल्डिंग. स्टूडेंट्स आप एक एक करके सारी एंट्रीज चेक कर लो. देखो कहीं बिल्डिंग का नाम नहीं है, बिल्डिंग का भी नाम नहीं, मशीनरी का भी नाम नहीं है, फर्नीचर का भी नहीं, उनका कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं. सो इट विल डायरेक्टली गो टू द फिक्स एसेट शेड्यूल. लैंड एंड बिल्डिंग, जो अमाउंट दिया है सेम का सेम हम कॉपी कर लेंगे, 10 लाख. उसको तो टच भी नहीं किया, सो प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है. प्लांट सेम वे, प्लांट भी आप एंट्रीज चेक कर सकते हैं, कहीं भी प्लांट का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, सो नो नीड टू वेस्ट टाइम, वो आंसर सेम रहेगा. सेम वे फर्नीचर, फर्नीचर का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था स्टूडेंट्स, सो वो सेम रहेगा 1 लाख. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस. डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस. 2 लाख है. ढूंढो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट एंट्री ऑनवर्ड्स. पहली एंट्री में आपने क्रेडिट कर दिया, एसेट क्रेडिटेड मींस माइनस, सो 2 लाख माइनस 2 लाख इज जीरो. फर्दर देर आर नो मोर इन्वेस्टमेंट, आगे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब फाइनल आंसर जीरो ही रहेगा. इट वोंट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट. नेक्स्ट स्टॉक. पूरी एंट्रीज में कहीं स्टॉक का नाम आया ही नहीं है स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टॉक विल गो टू इन्वेंट्रीज. यहाँ पे बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में जाएगा 1,70,000. नेक्स्ट इज डेटर्स. अगेन एक भी एंट्री में डेटर्स नाम की कोई चीज नहीं है स्टूडेंट्स, सो विल रिकॉर्ड द सेम आंसर हियर, 3,80,000. ओके, लास्ट फाइनली बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस कितना दिया है, 3 लाख. सो अभी बैंक बैलेंस ढूंढो, फर्स्ट एंट्री से ढूंढते हैं हम लोग. फर्स्ट एंट्री में बैंक डेबिट किया, एसेट डेबिटेड मींस ऐड, सो 2 लाख 5 ऐड कर लो. और बैंक ढूंढो, यहाँ पे देखो डेबिट किया, सो ऐड 5 लाख मोर, 10 लाख 5 हो गया. और कहीं बैंक स्टूडेंट्स यहाँ क्रेडिट किया मतलब माइनस. आगे भी ढूंढ लेते हैं बैंक. यहाँ पे बैंक है नहीं है, सो फाइनल आंसर फॉर बैंक है 6,05,000. सो बैंक बैलेंस कहाँ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैलेंस शीट में डायरेक्टली अगेंस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,05,000. सो वी हैव कंप्लीटेड द ओल्ड बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन. फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, वापस से एक बार एंट्रीज चेक करो, कोई ट्रांजैक्शन बाकी तो नहीं रह गया जो कैंसिल नहीं है. देखो ये तीनों ट्रांजैक्शन कैंसिल है. ये 8% डिबेंचर बाकी है ना, सो ये अभी आएगा. 8% डिबेंचर मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सो अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आई विल राइट 8% डिबेंचर्स, और वो अमाउंट था 5 लाख. दिस 8% डिबेंचर 5 लाख. और कोई ट्रांजैक्शन बाकी है, यस. इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 4 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 4 लाख, जीरो. ये तो हो चुका है. क्रेडिट डेबिट 4 लाख, जीरो. स्टूडेंट्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट 4 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट 4 लाख, जीरो.
Bonus to shareholders credit 8 lakh, bonus to shareholders 8 lakh debit 0. All transactions covered, कुछ भी नहीं बचा. ओके, सो अभी क्या करेंगे, हमारा शेड्यूल क्लोज करेंगे. पहला ये शेड्यूल, इसमें तो एक ही अमाउंट है 24 लाख आ जाएगा. इसमें भी एक ही अमाउंट है 55,000. Here there are three amounts 10, 10, 20 and 1, 21 लाख. ये तीनों अमाउंट्स अभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे. So share capital is number 1, amount is 24 lakh. Reserve is number 2, 55,000. And fixed asset is number 3. Fixed asset is number 3, amount is 21 lakh. There is nothing else. अब टोटल करना स्टार्ट करते हैं. 24 lakh plus 55,000. So 24 lakh 55,000. 5 lakh plus 0, 5 lakh ही रहेगा. यहाँ नथिंग, कुछ भी नहीं देखो यहाँ पे. सो ये 3 लाख प्लस प्लस करेंगे तो 3 लाख ही रहेगा. ओके, सो टोटल 24 लाख 55 प्लस 5 lakh and 3 lakh is 8 lakh. So 32 lakh 55,000. बैलेंस शीट ये 21 लाख ही रहेगा आउटर कॉलम में. 21 लाख प्लस 0 0 करेंगे 21 लाख. या अभी इसको चेक कर लो. 1 lakh 70 प्लस 3 lakh 80 प्लस 6 lakh 5,000 कम्स टू 11 lakh 55,000. तीनों का टोटल आउटर कॉलम में. ये कुछ भी नहीं दिया है हमको. ओके, करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. सो 21 लाख प्लस 11 लाख 21 लाख. सो 32 lakh 55,000 इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स. ये उसका बैलेंस शीट है. ये शेड्यूल है 1, 2 and 3. 3 शेड्यूल हमने बनाया. ऑथराइज नहीं दिया था, नहीं लिखा. ओके, दीज आर द एंट्रीज. यहां से स्टार्ट किया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, बाय बैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. ऑल्दो फ्रेश इश्यू था बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज क्वेश्चन सेज बाय बैक शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ये एंट्रीज है. एंड बोनस का एंट्री, कहां से कितना यूज किया, दैट इज इंपॉर्टेंट.